Hello. Good evening, my dears. Okay, so today in this official Proactive Academy channel, we are going to study the full tissue chapter of class 9th biology under 45 minutes time period only. हम लोग यहाँ पर पूरा एकदम full chapter पढ़ेंगे 45 minutes के time period के अंदर में. So this will be the revision course. This will not be in full details explanation. For full details explanation, you can see other videos that are present in the channel. इस चैनल में और सब बहुत सारे वीडियोस है टिश्यू चैप्टर पे, सेल चैप्टर पे, वो सब वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, माय डियर्स. And in this session, we are going to have a quick glance, a quick revision of the important topics, of all the topics, not only the important ones, of all the topics that are present in NCERT, plus some notes from revision from other reference books also. So without any delay, let us start. सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं माय डियर्स कि डिफिनेशन, टिश्यू का डिफिनेशन क्या है. देखो टिश्यू जो है ना, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या करते हैं, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन. यहाँ पर देखो बहुत सारे, दिस इज हियर ए ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ पर ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है. ओके, और ये सब सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ना, ये सब सारे सेल्स ये क्या फंक्शन करते हैं, ये सब एकदम कोई एक सेम सिमिलर फंक्शन कर रहा है. फॉर एग्जांपल सेम, सपोज दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. न्यूट्रिशन का फंक्शन कर रहा है, फूड को इंटेक करना और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसका ये फंक्शन कर रहा है सारे ये सब सेल्स. तो ये सब सेल्स को हम लोग एक ग्रुप यहाँ पर बना सकते हैं. ये ग्रुप बना करके ये सब सारे सेल्स का ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, अब एक टिश्यू कहेंगे. और यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप है फॉर एग्जांपल, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या है, यहाँ पर ये सब सारे जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, these all cells are performing the function of respiration. Let us say respiration का फंक्शन कर रहा है. Then this group of cell also is said to be a tissue. और ये टिश्यू टर्म जो है, the term tissue was first given by Mary Frances Xavier Bichat. इसका फुल नेम है Mary Frances, Francois, Frances Xavier, Xavier, Xavier Bichat. And this Mary Frances Xavier Bichat, he is also known as the father of histology. This Bichat is also known as the father of histology. तो अब यहाँ पर हिस्टोलॉजी क्या है, देखो टिश्यूज के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, that study of the tissues is known as, क्या कहते हैं उसको, that is known as histology. So what is meant by histology? Histology is a branch of biology. Okay, this histology क्या है, ये biology का एक branch है. This is a branch of biology that deals with the study of what? Study of tissues. Tissues का study, tissues के बारे में कुछ भी जो डिस्कस किया जाता है टिश्यूज के ऊपर में, टिश्यूज का फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, एनाटॉमिकल फीचर, टिश्यूज के अंदर में कोई एक टिश्यू के अंदर में, पार्टिकुलर टिश्यू के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन से सेल है, वो सब सेल्स के शेप क्या है, साइज क्या है, वो सब सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस कैसा होगा, वैक्यूल होगा कि नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा, मतलब कुछ भी हम लोग टिश्यू का अंदर में जो उसका कंपोनेंट सेल्स है उसके बारे में हम लोग कुछ भी जो स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, हिस्टोलॉजी कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, hit a like. You are not hitting like to the video. I can see so many few likes are there. Okay, till now few likes are there, and always be in full energy. Who are in full energy, give up the symbol of full energy. You see, I want the symbol of full energy, that is, this is the symbol of full energy. So एकदम फटाफट सबका एकदम full energy का symbol एकदम आना चाहिए. कौन कौन full energy में है? This is evening study time with your Karan sir. Okay, with your beloved Karan sir, and you all are my beloved dear students. So those who are having the full energy, show the sign of full energy. Yes, some signs are coming of the full energy. Very nice. It gives me support, it gives me encouragement, my dears. It gives me encouragement. So always give the symbol of full energy and hit likes to the video. Many viewers are here, but likes are not so much. Why? What is the reason? I am giving my full energy, I am giving my full time to you, so you must also contribute you must also contribute something from your side. That is, your contribution should be likes and comments, and always remaining in the full energy during the study time. Not only the study time, you must remain in full energy during the whole day and the whole night, so that you can do your work properly, efficiently, my dears. Always in your life remain in full energy, and that is the only secret of success. Okay, many blockades will come in your pathway, but you must remain in full energy, face all the challenges boldly, and then go forward, straight forward.
break all the barriers until you achieve your mission, until you achieve your aim, that is destination. Okay, so hit likes, my dears, hit likes those who are enjoying the video, hit likes and subscribe those who are new here. Subscribe, bro, my dear students. Many friends are here, but you have not subscribed till now. Subscribe karo channel ko फटाफट and share this video link to your friends. जितना हो सके friends, near, dear, relatives, okay, your cousins, brothers, sisters, सबको ये link share करो so that they can also enjoy, they can also grab some knowledge from this session, from this live session. Welcome you all, my dear students, in this live session. And फटाफट link को share करो. Those who have not subscribed the channel till yet, subscribe the channel. This is my official channel. Subscribe the channel, my dear students. ओके, लाइक्स एकदम आना चाहिए, कमेंट्स एकदम आना चाहिए, फुल एकदम एनर्जी के साथ कमेंट्स आना चाहिए. सो नाउ अगेन फोकस हियर. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू. इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं. एंड विचार जो है, विचार हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ बीइंग द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. सो इन दिस चैप्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी the tissues into two half portions, that is the plant tissue and the animal tissue. Plant tissue, देखो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का डिफरेंसेस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का डिफरेंसेस क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है. देखो प्लांट टिश्यू में ना हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं. प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या होगा? कोई एक फिक्स शेप नहीं होगा, साइज नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा. एंड परमानेंट टिश्यू का क्या होगा? फटाफट एकदम कमेंट में एकदम बोलो परमानेंट. व्हाट इज मीन बाय परमानेंट टिश्यू? फटाफट एकदम फटाफट माय डियर्स. ओके, कमेंट्स एकदम फटाफट आंसर्स आने चाहिए. क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय परमानेंट टिश्यू? एनीबॉडी नोस? Yes, some replies, some responses are coming. Very nice, well done, my dear students, well done. एकदम full energy के साथ रहो, full energy के साथ. If you are with me, then you must always remain in full energy. If you are with me and you are not having full energy, then there is no use. Okay, there is no use of being with me, of studying with me. If somebody studies with me, if means all my students who studies from me must be in full energy all the time and full motivated all the time. If you are not motivated, others will kick you from your pathway and you will have to remain lagging behind others. So that full energy, that full motivation you must have always inside yourself. Okay, my dears, now focus here. Permanent tissue का यहाँ पर definition किसने दिया है? Yes, very nice, well done. Permanent tissue. ओके, सो परमानेंट टिश्यू का क्या होगा? फिर फिक्स होगा, फिक्स शेप होगा, फिक्स शेप, फिक्स साइज एंड फिक्स फंक्शन. जो सेल्स के अंदर में होते हैं ना, वो सब सेल्स का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं. लेकिन एनिमल्स में, हम लोग के अंदर में ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन है? हम लोग के अंदर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. ओके, नो सच डिफरेंशिएशन. और यहाँ पर देखो प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू के अंदर में कभी देखो ऑर्गन सिस्टम. जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर में कितना ऑर्गन सिस्टम्स है? हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन आवर बॉडी? आज जो 2:30 बजे वाला क्लास अटेंड किया होगा, तो वो उसमें 2 PM वाला क्लास अगर अटेंड किए हो कोई, तो उसमें मैंने बताया था ऑर्गन सिस्टम कितना होता है हम लोग बॉडी में. कितना होता है? एनीवन यू नो? माय डियर्स, एनीवन? comment fast in the live chat. Comment fast. How many? And you can if not in the live chat, then you can comment in the comment section also of the YouTube. Just comment section. अगर लाइव चैट में नहीं करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी करो, फटाफट करो. यस, देयर आर 12 ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी. तो ऐसे प्लांट के अंदर में ऑर्गन सिस्टम होगा क्या? 12 ऑर्गन सिस्टम जैसे हम लोग के ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में है? नहीं, वैसा नहीं होता. So they have simple organization of tissues, okay, and we animals have complex organization of tissue. Tissues are organized to form. Tissues organize करके क्या बनता है my dears? फटाफट एकदम फटाफट क्या बनता है? फटाफट मैं देख रहा हूँ कमेंट किसका आ रहा है. Okay, yes, tissues organized to form. Yes, organs बनता है. और organ से फिर क्या बनता है? organ से बहुत सारे organ system बनता है. और ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे मिला करके फिर क्या बनता है? एक इंडिविजुअल बनता है, एक फुल्ली डेवलप इंडिविजुअल बनता है ना? तो ऐसे एनिमल्स में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज होगा. टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम एंड देन टू इंडिविजुअल. बट प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा. और प्लांट्स के अंदर में ना बहुत सारे, देखो प्लांट का जो ये ट्रंक है, फॉर एग्जांपल ये जो स्टेम है या फिर ट्रंक जिसको हम लोग कहते हैं,
है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे वो कॉर्क जो होते हैं, जो छिलका जो होता है, जिसको हम लोग छिलका कहते हैं, है ना, छिलका जो हाथ से हम लोग उखाड़ उखाड़ के खेलते हैं, खेले हो ना सबके सब। यस आई नोस मेनी बॉयज ऑफ यू हैव डन हैव पुल्ड आउट दिस कवरिंग। दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, डेड सेल और लिविंग सेल। किससे बनता है, डेड सेल या फिर लिविंग सेल, बताओ फटाफट फटाफट। यस डेड सेल से बनता है ना। तो प्लांट टिश्यू में प्लांट टिश्यू के अंदर में क्या होगा, लिविंग सेल्स भी होगा, डेड सेल्स भी होगा, बहुत सारे डेड सेल्स होगा। लेकिन एनिमल टिश्यू के अंदर में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स ही होगा, और डेड सेल्स जो है ना बहुत ही फ्यू होगा। हम लोग के डेड सेल्स, हम लोग के अंदर में डेड सेल्स कहां पर होते हैं, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, फटाफट एकदम बताओ, कहां पर होते हैं हम लोग के अंदर में डेड सेल्स, कहां पर होते हैं। अरे हियर्स में माय डियर डॉक्टर्स, दिस हियर इज अ डेड सेल एंड दिस फिंगर्स दैट इज नेल, नेल क्या है, नेल इज आल्सो द डेड सेल, है ना। नेल्स एंड दिस हियर्स आर डेड सेल। ओके, फिर हम लोग आते हैं, ये देखो बहुत सारे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गया, काफी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू मेंटेन करने में बहुत कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू होते हैं। एंड प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू ग्रो indefinitely throughout the lifespan, and animal tissue जो है, एनिमल टिश्यू grows up only up to a certain age। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में 20 इयर्स तक ह्यूमन बींग्स का एकदम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। सो ये सब पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हो, एस चांद बुक में बहुत सारे पॉइंट्स होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखो प्लांट टिश्यूज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर जाकर के एनिमल टिश्यूज के बारे में हम लोग फटाक से एकदम पढ़ेंगे। और विदाउट डिले वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट नाउ। लेकिन और व्यूअर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बट लाइक्स जो है ना, लाइक्स एकदम पता नहीं, यू ऑल आर व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट नो, लाइक्स उतने सारे नहीं आ रहे हैं, लाइक्स उतने सारे नहीं आ रहे। I am giving my full energy to you, my dears, in this off time period also, and then you are not giving likes to the video. You are not subscribing the channel. What is this, my dear students? Please cooperate, subscribe the channel, give likes, hit the likes as much as you can. And now here, let us come. Meristematic tissue, plant tissue जो है, it is divided into meristematic tissue and permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू जिसके अंदर में जिसका कोई एक जिसके अंदर में जो सेल्स है, वो सब सेल्स का कोई एक फिक्स शेप नहीं होगा, साइज नहीं होगा, एंड कोई पार्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा। ये सब टिश्यू के अंदर में जो सेल्स होते हैं ना, वो सब सेल्स क्या करते हैं, सिंपली दे ग्रो अप, दे आर लाइक द चाइल्ड की तरह, जैसे ह्यूमन चाइल्ड होते हैं। सिंपली ह्यूमन चाइल्ड क्या करते हैं, ह्यूमन चाइल्ड दे कंज्यूम फूड एंड देन ग्रो अप। वैसे ही ये सब जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे विल नॉट हैव एनी प्रॉपर फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं होगा। जैसे एक चाइल्ड का फंक्शन नहीं होता है ना, ह्यूमन चाइल्ड का कोई सोसाइटी में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, नहीं होता है। वैसे यहाँ पर ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स है, उसका एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा। दे विल सिंपली कंज्यूम फूड, बाहर से फूड कंज्यूम करेगा और फिर अपना साइज को बढ़ाएगा। ओनली दिस सेल इलोंगेशन, सेल इनलार्जमेंट करते हैं। ओके, एंड दैट दो सेल्स आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड यहाँ पर अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जब ये ग्रो हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन चाइल्ड, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ह्यूमन चाइल्ड का एकदम हमेशा एकदम दिमाग में एकदम बैठा करके रख लो, ह्यूमन चाइल्ड जैसा करता है ना, वैसा ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के साथ में होता है। ह्यूमन चाइल्ड जो है, जब वो सब बॉर्न करते हैं, तो जब तक वो लोग प्रॉपरली एकदम फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक उस सोसाइटी में उसका कोई एक पर्टिकुलर रोल नहीं आता, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होते। वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, when they have not become mature, till then they do not have any particular contribution, they do not have any particular function। और फिर जब कुछ मैच्योर हो जाते हैं, तब जाकर के यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, will slowly and slowly acquire fixed shape आ जाएगा, वो लोग के अंदर में फिक्स साइज आ जाएगा, फिक्स फंक्शन आ जाएगा। और ये फिक्स शेप, फिक्स साइज, फिक्स फंक्शन आने का जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करो, क्या कहते हैं माय डियर्स, क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। कमेंट्स एकदम फटाफट, एकदम कमेंट्स रेस्पॉन्सेस आने चाहिए। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दे आर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये सब जो है, ये यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, दिस डायग्राम इज सपोज फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर इट एज ए सूट, या फिर एक रूट भी कंसीडर इसको कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये एक सूट है या फिर एक रूट है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर
ये सूट ये हम लोग मान लेते हैं, और ये सब जो क्या, ये सब दिस कैन यू कैन कंसीडर इट एज ब्रांचेस और लीफ, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसका सूट का जो टिप है, सूट का टिप में यहाँ पर सबसे एपेक्स पोर्शन में, एपेक्स मींस द टिप, एपेक्स पोर्शन में भी यहाँ पर क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एंड एपेक्स पोर्शन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और यहाँ पर ये सब रह करके क्या करेगा, ये सब यहाँ पर रह करके फूड को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, और फिर सेल का साइज में एकदम डेवलपमेंट करेगा, और फिर सेल डिवीजन करेगा। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, और फिर सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन ऑल्सो। तो यहाँ पर सेल डिवीजन करेगा। देखो सेल डिवीजन करते 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 ये प्लांट का जो हाइट है ना, प्लांट का हाइट को इतना बना देगा। पहले से प्लांट हाइट ओनली अप टू हियर इट वाज, नाउ इट हैज बिकम अप टू हियर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? टू इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करना? इंक्रीज द हाइट, और वी कैन से द लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट्स, है ना। सेकंड नंबर में फिर आते हैं, देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर जो ये है द पॉइंट फ्रॉम व्हिच ए लीफ और ए ब्रांच अराइज, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फटाफट एकदम कमेंट करो, किसको आता है, किसको किसके अंदर में गट्स है, हु हैव द गट्स टू गिव द आंसर फॉर दिस। फटाफट एकदम कमेंट माय डियर्स, फटाफट एकदम कमेंट्स। व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द प्लांट पार्ट फ्रॉम व्हिच न्यू लीफ और ब्रांच डेवलप? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, फटाफट एकदम, किसी के अंदर में गट्स नहीं है आंसर देने का? हाँ, यस, नोड्स कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नोड, NODE नोड। सो हियर इज वन नोड एंड हियर इज अनदर नोड, यू कैन सी हियर इज अनदर नोड। और ये नोड्स में यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर नोड में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द नोड्स इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये दो नोड के बीच में जो ये स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इंटर नोड कहते हैं। अब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहने के कारण से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर जो है ये क्या करेगा? बहुत ही सेल डिवीजन करेगा, यहाँ पर रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स यहाँ पर करेगा। तो नाउ यू कैन सी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले यहीं तक था, अब यहाँ तक हो चुका है, ये वाला भी अब यहाँ तक हो चुका है। तो यहाँ से एक न्यू लीफ और ब्रांच डेवलप कर सकता है ना, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यहाँ से भी अब एक न्यू लीफ और ब्रांच डेवलप कर सकता है ना, करेगा। सो दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल, इसके कारण से अभी क्या हुआ है? इसके कारण से एक न्यू लीफ, एक न्यू ब्रांच बन गया है। So it is responsible for increasing the number of क्या? Number of leaves and branches in a plant, है ना my dears। अब फिर आते हैं तीसरा नंबर में, that is known as lateral meristematic tissue। So lateral meristematic tissue मान लो ये क्या है? This is the stem है, ये shoot है, stem है। तो ये राउंड शेप शूट है, तो इसको एकदम पूरा ये ऊपर से एकदम कवर करके जो रखता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज नोन एज, ये चारों बगली से पूरा एकदम ऊपर से एकदम, है ना, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं उसको? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये चारों बगली से है। आई कैन नॉट सी यू हियर 3D पिक्चर बिकॉज दिस बोर्ड इज 2D, है ना, मैथ्स का थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर रुकिए। सो यहाँ पर नहीं दिखा सकता। नाउ बट यू मस्ट एज्यूम दैट दिस इज द स्टेम, अगर है तो स्टेम के एकदम चारों बगली में जो टिश्यू होता है दैट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहाँ पर ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब यहाँ पर सेल डिवीजन करेगा। देखो यहाँ तक भर गया, यहाँ तक सेल डिवीजन करके इसमें भी यहाँ तक भर गया। सो ये क्या हो गया? ये चारों बगली अगर सेल डिवीजन करेगा तो क्या होगा? इसका ये जो थिकनेस है, द थिकनेस दैट इज द डायमीटर ऑफ द स्टेम विल इंक्रीज करेगा कि नहीं? सो व्हाट इज द फंक्शन? फटाफट एकदम कमेंट में एकदम फटाफट बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? टू इंक्रीज द, क्या है, क्या है? टू इंक्रीज द, फटाफट, you must have the full energy all the time, full energy all the time. Tomorrow is your test, so full energy all the time you must be showing. So it increases the white that is also known as girth, girth, girth of the plant का white यानी कि girth को increase करता है ना my dears। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो परमानेंट टिश्यू का फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो है, नाउ परमानेंट टिश्यू इज ऑफ अगेन two types, one is simple permanent tissue and another one is what? क्या होगा, क्या होगा? फटाफट एकदम कमेंट में, फटाफट मैं लिखने जा रहा हूं, लिखने से पहले एकदम आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा? दैट विल बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? दिस परमानेंट टिश्यू, दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोस परमानेंट टिश्यू which is made up of only a single
टाइप ऑफ सेल्स, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल्स जो बनता है दैट परमानेंट टिश्यू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा सेल टाइप से बनता है कोई परमानेंट टिश्यू देन दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन व्हाट, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक सेल टाइप से ज्यादा से जो बनता है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस कहते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब कि एक ही सेल टाइप से अगर बनेगा कोई एक टिश्यू दैट विल बी नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर एक से ज्यादा सेल टाइप से बनेगा दैट विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं मेनली, पेरेन्काइमा, और बता सकते हो? और जल्दी से एकदम फटाफट एकदम, पेरेन्काइमा और फिर क्या होगा? हाँ फटाफट एकदम रेस्पॉन्स दो। You can see the energy expenditure of mine. I have to drink something. Okay. Meanwhile, during the class, so energy expenditure बहुत लगता है my dears तुम लोग को। ये full अगर energy के साथ एकदम पढ़ाए, है ना, अगर पढ़ते हो तो then energy expenditure will be so much high. Okay. So but that is why you must also hit likes and subscribe the channel so that I can remain motivated. Your support will be my strength. If you are supporting me to do online live classes like this, then I will take the live classes frequently like this for you. है ना? Apart from the school studies, I will try to take this online classes, live classes many times frequently. In the next Saturday or next Sunday also I will be taking. Okay, जिसको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, फिर ऐसे ही लाइव क्लास चाहिए, फिर नेक्स्ट सैटरडे, मतलब कि चाहिए और फ्रीक्वेंटली चाहिए, देन यू कमेंट एकदम यस, हैंड्स अप करो या फिर फुल जोश का सिंबल दो, फुल एनर्जी का सिंबल दो। यस ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं। दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू again consists of three main types. They are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. फिर जाकर के इसके अलावा दो और भी टाइप होते हैं, क्या क्या है? वो है क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। सो नाउ लेट अस सी इन डिटेल। अब यहाँ पर फिर आते हैं हम लोग, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं पिक्चर बनाया ये पहला वाला पिक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज द पेरेन्काइमा का पिक्चर है। और यहाँ पर पेरेन्काइमा में देख सकते हो, पेरेन्काइमा का जो ये साइटोप्लाज्म है ना, दिस साइटोप्लाज्म इज वेरी मच हेवीली डेंस साइटोप्लाज्म इसमें होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, बट लेस डेंस एज कंपेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से थोड़ा सा कम डेंस होगा, लेकिन और सबसे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा ये डेंस होगा। और इसका न्यूक्लियस जो है ना, दिस इज द न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस विल बी लार्ज एंड न्यूक्लियस विल बी लार्ज इनफ, बहुत ज्यादा ही लार्ज होगा। और यहाँ पर अब छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर वैक्यूल्स होने लगते हैं। सो वैक्यूल्स, व्हाट आर दिस वैक्यूल्स मीन फॉर? These vacuoles are meant for storage of foods inside them. ये पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? अब क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक परमानेंट फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर ये वैक्यूल्स क्या करेगा? These vacuoles are responsible for the storage of foods inside them, है ना। Apart from this, अगर ये वैक्यूल के अंदर में एयर स्टोर हो, अगर ये पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यू का जो वैक्यूल्स है इसमें अगर एयर स्टोर किया हुआ रहे, देन इट विल बी नोन एज एरेनकाइमा कहेंगे। और कोई पेरेन्काइमा टिश्यू, ये एरेनकाइमा क्या करेगा? एरेनकाइमा के अंदर में जो वैक्यूल्स है, एरेनकाइमा एक पेरेन्काइमा टिश्यू का ही टाइप है जिसके अंदर में वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स के अंदर में फूड ना स्टोर होकर के एयर स्टोर किया हुआ रहता है ना। तो ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड बाउएंसी, BUOYANCY। व्हाट इज मीन बाय बाउएंसी? फटाफट एकदम कमेंट करो, व्हाट इज मीन बाय बाउएंसी? यू हैव स्टडीड इन द फिजिक्स में, है ना, ये बाउएंसी के बारे में। किसको कहते हैं बाउएंसी किसको कहते हैं? यस फटाफट एकदम आंसर्स आने चाहिए, फुल एनर्जी के साथ एकदम फुल्ली मोटिवेटेड के साथ एकदम आंसर्स आने चाहिए। व्हाट इज मीन बाय बाउएंसी? यस करेक्ट आंसर्स आर कमिंग। बाउएंसी मतलब क्या होता है? बाउएंसी मींस एबिलिटी टू फ्लोट होता है ना। तो यहाँ पर ये एयर है, तो कोई भी एयर, अगर एयर को हम लोग वाटर सरफेस के ऊपर में डालते हैं, एक बैलून को अगर बैलून के अंदर में एयर फिलअप करके वाटर बॉडी के ऊपर में, वाटर सरफेस के ऊपर में डालते हैं, तो वो क्या होता है? उसको बाउएंट फोर्स मिलता है, मतलब कि अपवर्ड फोर्स मिलता है। इन फिजिक्स इट इज देयर अपवर्ड फोर्स मिलता है, और वही अपवर्ड फोर्स के कारण से वो क्या करने लगता है? वो फ्लोट करने लगता है। वैसे ही अगर कोई पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर में
एयर स्टोर करके रखा जाए उसका वैक्यूम में, तो उसको हम लोग पेरेन्काइमा कहेंगे। एंड दैट विल प्रोवाइड बायोएंसी टू द एक्वाटिक प्लांट्स को बायोएंसी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखो कोई कोई पेरेन्काइमा टिश्यू जो है, कोई कोई पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर में क्लोरोफिल स्टोर किया हुआ रहता है। अगर क्लोरोफिल स्टोर किया हुआ है देन दैट पेरेन्काइमा विल अपीयर ग्रीन इन सैप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड अगर ये क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, बताओ फटाफट एकदम। क्लोरोफिल अगर है उसके अंदर में तो क्या करेगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो, एकदम एकदम टाइपिंग एकदम घटना नहीं चाहिए, एकदम टाइपिंग एकदम फटाफट एकदम करना चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा ना माय डियर्स, वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हो देयर इज लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, है ना, पेरेन्काइमा में। फिर कोलेनकाइमा में यहाँ पर देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ कोलेनकाइमा। यहाँ पर पेरेन्काइमा में जो भी सेल्स होगा सारे सेल्स क्या होगा, ऑल द सेल्स विल बी लिविंग सेल्स होगा। लेकिन कोलेनकाइमा में जो होगा ऑल द सेल्स विल बी सम विल बी लिविंग एंड सम विल बी क्या होगा, सम विल बी डेड सेल्स। दोनों होते हैं कोलेनकाइमा में, कुछ कुछ लिविंग होते हैं, कुछ कुछ डेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म जो है ना, अब साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म बहुत ही कम होने लगा है। तो कोई कोई यहाँ पर सेल में साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म होगा, कोई कोई सेल में यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो है ना बहुत कम होगा। वेरी लिटिल, इट विल बी वेरी मच लिटिल, प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होगा। इसलिए अगर प्रोटोप्लाज्म ना हो, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, सेल के अंदर में जो लिविंग मैटर है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म हम लोग किसको कहते हैं, फटाफट एकदम कमेंट करके बताओ। प्रोटोप्लाज्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म। Yes, protoplasm means cytoplasm plus nucleus। प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर अगर जिसके अंदर में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होगा दैट विल बी लिविंग, और जिसके अंदर में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम हो चुका है यानी कि प्रोटोप्लाज्म बहुत ही कम हो चुका है दैट विल बी डेड सेल होगा। और इसका जो सेल वॉल है ना, अब सेल वॉल बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू द सेलुलोज डिपोजिशन एट द कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स जो है सेल वॉल का, इसमें जो है ना बहुत ज्यादा ही सेलुलोज डिपोजिशन होगा। सो देयर इज सेलुलोज deposition at the corners and so the corners will get thicken। ये सब जो corners है ये corners एकदम thick हो जाएगा। My dears, we are doing only the revision course, that is why time limit है, एक हम लोग के पास time limit है, इसलिए हम लोग एकदम fully उतना एकदम details में जाकर के डिस्कस नहीं कर सकते, but I am trying to cover all the points, all the important points। अब ये कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा क्या करेगा, यहाँ पर सेलुलोज होते हैं ना, तो ये सेलुलोज क्या करते हैं, सेलुलोज जो है इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट। एंड सो हार्बिसियस प्लांट जो होते हैं ना, और फिर श्रब्स जो होते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं, मतलब कि श्रब्स मतलब झाड़ी वाला प्लांट, हार्बिसियस प्लांट मतलब कि बहुत ही छोटा छोटा, जैसे कि ग्रासेस हो गया, ये सब ग्रासेस वाला प्लांट, वो सब को जो प्लांट पार्ट्स होता है बहुत ही क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होते हैं। दे डू नॉट बेंड, दे बेंड इजीली, मतलब कि बेंडिंग कर जाता है विदाउट ब्रेकिंग। वो बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग क्यों होता है, due to the flexibility provided by the cellulose present at the corners of the cell wall in कोलेनकाइमा। अब यहाँ पर ये तीसरा टाइप आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा में जो भी सेल्स होगा सब एकदम क्या होगा, डेड सेल्स ही होगा, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं, नो प्रोटोप्लाज्म। सो ऑल द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा विल बी डेड सेल्स, क्योंकि इसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं। एकदम दिमाग में एकदम स्टोर करके रख लो। और ये स्क्लेरेनकाइमा तब क्या करेगा, स्क्लेरेनकाइमा विल प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर क्या करेगा, प्लांट पार्ट्स को क्या करेगा, प्लांट पार्ट्स को एकदम हार्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना। तो देखो कोई कोई सीड होते हैं, जैसे कि जूट का जो फाइबर हो गया, या फिर कोकोनट का जो सीड है, ये सब बहुत ही हार्ड होते हैं। इतना ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द प्लांट पार्ट्स hard and it is also responsible for supporting other plant parts। और सब जो उसके अंदर में जाइलम, यहाँ पर जाइलम अभी पढ़ने वाले हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू को जो एकदम ऐसे खड़ा करके अपराइट करके रखता है, that is because of this sclerenchyma only। so my dears, अब हम लोग आते हैं complex permanent। so presenting you here xylem and the phloem of the complex permanent tissue। तो यहाँ पर ये जाइलम जो है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, फटाफट एकदम कमेंट करके बता दो एकदम, जाइलम का फंक्शन क्या होता है माय डियर्स। जाइलम, जाइलम फटाफट एकदम, जाइलम। yes, many answers are coming, very nice, very nice। keep up the energy, keep up the energy level, keep up your energy level, never let your energy level go down, always stay motivated and with full energy all the time।
सो यहाँ पर जाइलम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल्स को, रूट जो है ना, ये रूट क्या करता है, इसके बगल में जो सॉइल है, सॉइल से वाटर को जब ये एब्जॉर्ब करेगा रूट, तो वाटर में क्या भी होगा, वाटर में मिनरल्स भी डिसॉल्व होते हैं ना, तो वो मिनरल्स भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस वाटर अलोंग विद मिनरल्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ऊपर का जो जितना भी सारा प्लांट पार्ट्स है सबको ट्रांसपोर्ट करेगा, लीव्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, लीव्स में ये वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाएगा। सो दैट ट्रांसपिरेशन कैन टेक प्लेस। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, तो वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। और ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, है ना, यूनिडायरेक्शनल यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। और यहाँ पर इसका जाइलम के अंदर में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, जाइलम के अंदर में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। फ्लोएम के अंदर में यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, इसीलिए फ्लोएम को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जाइलम को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, बिकॉज़ इट इज हैविंग मोर देन वन सेल टाइप। तो यहाँ पर ये जाइलम का जो ट्रैकिट्स एंड वेसल्स है, दे आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये जाइलम पेरेन्काइमा, जहां पर भी पेरेन्काइमा हो तो ये क्या करेगा, ये फूड को स्टोरेज करेगा, है ना। और फिर अगर फाइबर है तो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर में देखो माय डियर्स, जाइलम जो है, जाइलम के अंदर में सिर्फ एक ही लिविंग कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द जाइलम पेरेन्काइमा। और ये जो है ट्रैकिट, वेसल एंड जाइलम फाइबर, दिस आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। फिर फ्लोएम में आते हैं, फ्लोएम के अंदर में भी 4 कंपोनेंट्स से ये बना हुआ रहता है, दैट इज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर शिफ्ट ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम they are responsible, shift tube and companion cells are responsible for conduction of food, है ना। ये सब क्या करेगा, ये सब फूड को कंडक्ट करेगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम द लीव्स। देखो कौन सा फूड को कंडक्ट करेगा, they are responsible, this phloem tissue is responsible for conduction of photosynthesized food. So what is meant by photosynthesized food? फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड लीव्स बनाता है, दैट फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसाइज्ड फूड कहते हैं माय डियर्स। यहाँ पर लीव्स जो है, ये लीव्स क्या करेगा, ये फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस के जरिए, और ये फूड लीव्स से फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पर अगर ऊपर में एक फ्रूट है, या फिर ऊपर में एक ब्रांच है, या फिर नीचे में यहाँ पर देखो स्टेम है या फिर रूट है, तो ये सब हर पार्ट को ये लीव्स के अंदर में जो फूड सिंथेसाइज किया गया फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम के अंदर में ये दो चीज जो है, ये दो कंपोनेंट करता है, मेनली शिफ्ट ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। एंड ये फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा। सेम है, पेरेन्काइमा अगर है तो फूड स्टोर करेगा। और यहाँ पर फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सो दैट द फ्लोएम टिश्यू कैन स्टेड अपवर्ड। तो यहाँ पर एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंसेस पूछ सकते हैं बहुत सारे। यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम का मैंने डिफरेंसेस बता दिया। यहाँ पर फ्लोएम के अंदर में एक और डिफरेंस देखो, यहाँ पर ये सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों अब क्या है, दिस 3 आर द लिविंग कंपोनेंट्स एंड दिस वन ओनली इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये भी एकदम ध्यान में रखना है। तो अब ये हो गया प्लांट टिश्यू के बारे में हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एनिमल टिश्यू माय डियर्स, मेंटेन द फुल इनर। Okay, my dear. So I am presenting you here about the animal tissues once again. तो एनिमल टिश्यूज में देखो ये सब डायग्राम्स जो है एकदम बहुत ही ये सब डायग्राम्स इजी है बनाना, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्रैक्टिस करो डायग्राम्स, ये एकदम फटाफट मैं अभी फटाफट तुरंत में बनाया हूँ, और ये तुरंत बन जाएगा। और यही डायग्राम जो है, डायग्राम से हम लोग को समझना है। तो पहले एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, फिर जाकर के मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और फिर क्या है, नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर उसमें सबसे पहला वाला जो है हम लोग एपिथेलियल टिश्यू लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, देखो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन है प्रोटेक्टिव। सबसे ज्यादा उसका मेन फंक्शन जो होता है दैट इज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करना। कोई एक ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, तो उसके ऑर्गन के ऊपर में सबसे ऊपर वाला लेयर में ये एपिथेलियम टिश्यू रहेगा और ये प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज द मेन फंक्शन। प्रोटेक्शन के अलावा इसके और भी फंक्शन है, दैट इज सेक्रेटरी फंक्शन भी है ना। जैसे कि कुछ कुछ चीजें को सेक्रेट करना, जैसे कि हार्मोन सेक्रेट करना, एंजाइम सेक्रेट करना, फिर जाकर के म्यूकस सेक्रेट करना, तो ये सब सेक्रेटरी फंक्शन है। SECRETORY, सेक्रेटरी फंक्शन। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्टिव एंड सेक्रेटरी फंक्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले लेते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू देखो 6 टाइप्स है, मेन 6 टाइप्स आर देयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
तो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, यहाँ पर ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो है ना, इसका जो सेल्स होगा, द सेल्स विल बी एक्सट्रीमली थिन सेल्स होगा, बहुत ही थिन सेल्स होगा, और फिर क्या होगा, थिन एंड इरेगुलर शेप्ड सेल्स होगा। इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा, ये सब सेल्स का, बट दे विल फिट ऑल टुगेदर लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर। जैसे कि टाइल्स फ्लोर पे हम लोग टाइल्स बिछाया जाता है ना, पेव किया जाता है ना, वैसे ही टाइल्स ऑन ए फ्लोर पेवमेंट की तरह एकदम दिखेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेसेलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। ये कहां पर रहेगा, जैसे कि हम लोग का एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस मतलब स्किन का आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। व्हाट इज मीन बाय एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का सबसे बाहर वाला जो ये लेयर हम लोग को जो दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज, उसमें जो दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, और उसमें जो एपिथेलियम टिश्यू होगा दैट विल बी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। फिर जाकर के स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, देखो अगर यही स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो है, इसका ये अगर इसका 2 से 3 मतलब कि इसका एक से ज्यादा अगर सेल लेयर हो एपिथेलियम टिश्यू का, यही इरेगुलर शेप्ड एपिथेलियम टिश्यू का, पहले फुल जोश में आ जाओ। मैं इतना एकदम फुल एनर्जी में एकदम पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग एकदम फुल एनर्जी में नहीं हो, लाइक्स नहीं आते हैं, फिर जाकर के ये एनर्जी का सिंबल नहीं आते हैं, भूल जाते हो माय डियर्स, भूल जाते हो क्या, ये एकदम भेजते रहो, सो दैट आई कैन गेट स्ट्रेंथ इन टीचिंग यू, आई कैन गेट फुल एनर्जी इन टीचिंग यू, एंड यू कैन आल्सो गेट फुल एनर्जी। ये एकदम भेजते रहो, ये हम लोग का सिंबल है। ओके ओके, सेंड। अब यहाँ पर देखो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, अगर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का 2 से 1 से ज्यादा अगर लेयर हो, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का 1 से ज्यादा लेयर हो, देन इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ये कहां पर होगा, सबसे बाहर में। देखो यहाँ पर ये स्किन है, स्किन का सबसे ऊपर में क्या होगा, सबसे ऊपर में तो ये एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होगा। उसके जस्ट नीचे में क्या होगा, उसके जस्ट नीचे में ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होगा। इसका भी मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन होगा प्रोटेक्शन। और अंदर में देखो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू रहने से क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजरी होने वाला था, एक मैकेनिकल इंजरी हुआ, तो मैकेनिकल इंजरी से वो बचाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, अपना खुद यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर में रह करके अपना खुद डैमेज हो जाता है, हर्ट हो जाता है, और अंदर का जितना भी यहाँ पर मसल्स है या फिर बोन है उसको प्रोटेक्ट करता है। सो इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू तीसरा नंबर में है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, दे विल बी क्यूब की तरह लगेगा, क्यूब लाइक सेल्स होगा ये सब, और ये सब का जो है ना 2 साइड होगा, एक होगा यहाँ पर फ्री सरफेस होगा, और यहाँ पर एक दूसरा वाला होगा अटैच सरफेस। अटैच सरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस, ये नीचे वाला जो सरफेस है ना, नीचे वाला सरफेस में यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्यूबॉइडल में होगा, सिलेटेड में होगा, ग्लैंडुलर में होगा, कॉलमनर में होगा। ये मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर में ये सब सारे सेल्स जो है ना लाई करते हैं, मतलब कि इसके ऊपर में रहते हैं ये सब सारे सेल्स। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये सब सारे सेल्स को। ओके, दैट इज अ फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो इस साइड में है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, इस साइड में जो है दैट इज नोन एज अटैच सरफेस करते हैं। और ये सब का क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल का न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस विल बी ओवल शेप्ड, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, the nucleus will be oval shaped nucleus, and this nucleus will lie towards the basement membrane, that is the attached surface के साइड में यहाँ पर ये रहेगा। ओके, और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा सेक्रेटरी फंक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग, और ये सब कहाँ पे रहता है, ये सब जो है दे आर प्रेजेंट इन द ट्यूब्स में होता है, ट्यूब्स दैट इज नोन एज डक्ट्स। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे डक्ट्स है, हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स है, तो ये ट्यूब्स में रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, ट्यूब्स है ना हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे ट्यूब है कि नहीं, जैसे कि सेलेवरी डक्ट है, ट्यूब है, फिर जाकर के फेलोपियन ट्यूब है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो एपिडाइडमिस है, फिर जाकर के वास्ट डिफरेंस है, जैसे स्पर्म सेल्स एकदम बाहर निकलते हैं, तो वो सब ट्यूब जो है, ट्यूब्स किससे बनेगा, ट्यूब्स विल बी मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, देखो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है ना, इसी का सेल्स यहाँ पर कुछ ऐसे इलोंगेटेड हो जाएगा, सो दैट विल बिकम टोलर देन ब्रॉडर। जितना ज्यादा चौड़ाई होगा ना, तो चौड़ाई से ज्यादा इसका लंबाई होगा। अगर ये सब सेल्स, कुछ सेल्स यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का कुछ सेल्स जो ऐसे इलोंगेटेड हो गया है पिलर की तरह, दैट इज दे आर आल्सो नोन एज पिलर लाइक सेल्स, इसको कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज पिलर लाइक सेल्स। तो पिलर लाइक सेल्स जिसमें है, जो है, दे आर नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और इसका भी न्यूक्लियस इधर ओवल शेप होगा, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के तरफ यानी कि अटैच सरफेस के तरफ लोकेट करेगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, अब देखो यहाँ पर ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है ना, यही यहाँ पर
ये कुछ कुछ कोलोनर एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर ऐसे करके इनफोल्डिंग्स बना लेते हैं, इनफोल्डिंग्स अंदर में ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेते हैं। दिस इनफोल्डिंग्स ऑफ द कोलोनर एपिथेलियम टिश्यू आर नोन एज, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये माइक्रोविलाई क्या करेगा, पता है किसी को? माइक्रोविलाई क्या करेगा बताओ, फुल एकदम फुल फुल एनर्जी के साथ एकदम बताओ, माइक्रोविलाई क्या करेगा? चल में माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई यहाँ पर क्या करेगा, माइक्रोविलाई जो है ये सब सेक्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि म्यूकस, म्यूकस या फिर कुछ कुछ सब्सटेंसेस, ऑयल, म्यूकस, ऑयल, लिपिड, ये सब सेक्रेट करेगा। एंड दिस सेल्स विल बी नोन एज, विल आल्सो बी नोन एज गॉबलेट सेल्स, इसको कहते हैं, है ना। ये सब सेल्स जो सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ कुछ सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, दिस सेल्स आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। ये सब सारे गॉबलेट सेल्स को मिला करके ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये सब हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं और ये सब जो है ग्लैंड्स में होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स में होते हैं। ग्लैंड से हार्मोन्स, एंजाइम्स प्रोड्यूस भी करते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, कुछ कुछ कोलोनर एपिथेलियम टिश्यू, कोई कोलोनर एपिथेलियम टिश्यू जो ऐसे सिलिया बियर करता है, सिलिया मींस फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके, दिस फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो बियर करेगा दे विल बी नोन एज, क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। कहां पर ये सब होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ये सब सिलिया क्या करते हैं, रैपिड टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करते रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, ओके, दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऐसे मोशन करते हैं। उससे क्या होता है, इट पुशेस द सॉलिड फूड, इट पुशेस द सॉलिड फूड, इट पुशेस द स्पर्म सेल, इट पुशेस द egg ovum, it also possess the mucus from one part of the body to another part। तो ये है एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। वन सेकेंड, अब हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड द नेम इटसेल्फ डिनोट्स that the muscle tissues are straighted, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, इसमें स्ट्रेशंस होते हैं। स्ट्रेशंस मतलब क्या है, स्ट्रेशंस मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है ना ऑल्टरनेट, ये लाइट एंड डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क बेल्स जो होते हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रेशंस। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, stratified muscular tissue, sorry, it is striated muscular tissue, striated, striated muscular tissue, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, दैट इज आल्सो नोन एज स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। इसको कहते हैं स्केलेटल, क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन। हमारे यहाँ पर जो ये स्केलेटन है ना, बोन में अटैच होकर के रहते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी एक्शन माय डियर्स, फटाफट एकदम कमेंट करो एकदम, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी एक्शन, किसको कहते हैं वॉलंटरी? एकदम फटाफट एकदम आंसर्स आना चाहिए, रिस्पॉन्सेस आना चाहिए। वॉलंटरी मसल किसको कहते हैं? तो 1 आवर में एकदम हम लोग, 1 आवर भी नहीं हुआ है अभी, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत हद तक एकदम पहुंच गए हैं। सो बी मोटिवेटेड, बी फुल विथ एनर्जी, फटाफट एकदम आंसर्स आने लगे हैं कुछ कुछ। यस 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 यस, ओके। देन यहाँ पर स्केलेट, वॉलंटरी मतलब दोस एक्टिविटीज व्हिच वी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल एंड कॉन्शियस थॉट। हम लोग सोच करके समझ करके अपने से एकदम अपने होशो हवास में, जो कहते हैं ना, होशो हवास में आकर के हम लोग जो अपने से चाह करके, जैसे मैं लेट मी ड्रिंक कॉफी लाइक दिस, तो मैं ये कॉफी जो पी रहा हूँ, ये कॉफी जो मैं पी रहा हूँ, एनर्जी ले रहा हूँ। सो दिस कॉफी, ये कॉफी पीना, दिस इज डन अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, माय ओन विल। हम लोग अपने विल से कर रहे हैं ना, हम लोग चाह के कर रहे हैं ना, ऐसे इनवॉलंटरी तो नहीं होता, अपने आप नहीं होता है। जैसे कि ये आइस का ब्लिंकिंग करना, आइस का ये जो ब्लिंकिंग किया जाता है, तो ये हम लोग अपने आप से कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं, दिस इज नॉट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, सो दिस इज इनवॉलंटरी, है ना। हार्ट बीट कर रहा है, दिस इज इनवॉलंटरी। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज इनवॉलंटरी, है ना। कोई आकर के ऐसे एक थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे जो हम लोग करते हैं, जैसे फेस को हटा लेते हैं, दैट इज आल्सो इनवॉलंटरी। सो दोस आर इनवॉलंटरी, जो हम लोग सोच के समझ के अपने आप होशो हवास में जो नहीं करते हैं, दे आर नोन एज इनवॉलंटरी। सो स्मूथ मसल्स आर रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इनवॉलंटरी एक्शंस करेगा, इसलिए स्मूथ मसल को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं।
और यहाँ पर इसको इसके अंदर में स्मूथ मसल के अंदर में यहाँ पर ऑल्टरनेट वाइट लाइट एंड डार्क स्ट्रेसेस नहीं होगा, सो दे आर नोन एज नॉन स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में ये जो व्हाइट एंड डार्क वेन्स, लाइट एंड डार्क वेन होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मायोसिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट है। मायोसिन इज डार्क एंड थिकर प्रोटीन, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए ये लाइट दिखता है। ओके, तो यहाँ पर देखो कोई भी ब्रांचेस नहीं है, सो दे आर अनब्रांच मल्टीन्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होगा, सो दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड कहते हैं। और फिर क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप है एंड स्ट्रेशंस होते हैं। दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ये वॉलंटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वॉलंटरी मसल्स इसको कहते हैं। अब स्मूथ मसल का क्या हालचाल है? स्मूथ मसल्स को स्पिंडल स्पिंडल शेप है ना, ये विच शेप यस, स्पिंडल शेप। यहाँ पर कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है जो एकदम तभी से एकदम फुल एनर्जी के साथ एकदम रेस्पॉन्स कर रहे हैं। वेरी नाइस, आई कैन सी, वेरी नाइस माय डियर्स, वेरी नाइस दोस्त हु आर रेस्पॉन्सिंग फ्रॉम दैट टाइम, वेरी नाइस माय डियर्स, डबल थम्स अप। ओके, सो दे आर स्पिंडल शेप होते हैं, मतलब स्पिंडल शेप का मतलब बीच में यहाँ पर देखो, बीच में यहाँ पर ऐसे ब्रॉडन होगा, और फिर इसका एंड जो है, दोनों एंड ऐसे पॉइंटेड जो होता है, दैट इज नोन एज स्पिंडल शेप। अब यहाँ पर स्पिंडल शेप मसल्स है ये, और ये सब क्या करेगा, इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करेगा। फिर जाकर के यहाँ पर ब्रांचेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं, सो दे आर आल्सो अनब्रांच। और फिर स्ट्रेशंस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। स्ट्रेशन इसकी तरह है, इसमें नहीं है, सो दे आर नॉन स्ट्रेटेड। और फिर क्या होगा, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर में एक ही न्यूक्लियस है। ओके, फिर आते हैं कार्डियक मसल में। सो द वर्ड कार्डियक, मैंने कहा था क्लास में, मैंने कहा था कार्डियक इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर व्हिच ऑर्गन? फटाफट आंसर्स दो, व्हिच ऑर्गन? व्हिच ऑर्गन? यस, हार्ट। हार्ट है ना, हार्ट। और फिर ब्रेन का क्या है? ब्रेन का क्रेनियम। लंग्स का क्या है? पल्मोन। और फिर किडनी का क्या है? फटाफट आंसर्स आने चाहिए। किडनी का क्या है? किडनी का बायोलॉजिकल टर्म क्या है? रीनल। यस, रीनल। सो कार्डियक मतलब कि यहाँ पर ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का मतलब यहाँ पर ये जो है ना, दे आर लोकेटेड इनसाइड द हार्ट एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द रिथमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ द हार्ट। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कौन करवाता है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू करवाता है। अब यहाँ पर ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो है, इसमें जो है ना, दिस दे बियर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ बोथ स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड। दोनों के बीच में मतलब कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का भी कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, और नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का भी कुछ प्रॉपर्टी है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है? स्ट्रक्चर वाला प्रॉपर्टी है, मतलब कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेशंस होते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेशंस होते हैं। ये है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का प्रॉपर्टी। और नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर क्या है कि नॉन स्ट्रेटेड, देखो ये नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स क्या परफॉर्म करता है? नॉन वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है ना, तो ये लोग भी तो इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है। हम लोग हार्ट बीट जो करता है, हम लोग सोच करके समझ करके होशो हवास में हार्ट बीट करवाते हैं क्या, कि हाँ अभी हार्ट बीट करना है, या अभी कुछ 5 मिनट के लिए हार्ट बीट को एकदम रोक देते हैं, ऐसे करते हैं क्या? नो, सो इट occurs according not according to our own will, so this is performing non voluntary action, है ना। तो ये हुआ ना स्मूथ मसल का फंक्शन। तो स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल दोनों का मतलब, ये दोनों का सिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों का प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलता है, कार्डियक मसल। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हिट लाइक द वीडियो, हिट लाइक द वीडियो। लाइक्स बहुत कम है वीडियोस में, और फिर शेयर करो लिंक को, शेयर करो टू अदर फ्रेंड्स हु हैव नॉट जॉइंड टिल नाउ, शेयर करो सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस लाइव सेशन। एकदम फटाफट एकदम शेयर करो, एंड फुल एनर्जी के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को माय डियर, सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon also, so that you can get a regular notification about the latest updates and many videos that are going to come in this channel from my side. Okay, so this live session was a gift to you my dears। देखो टाइम लिमिट बहुत कम है, इसलिए हम लोग का लाइव सेशन जो है आज हम लोग यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, बस ये 2% है, ये 2% हम लोग कभी और कर लेंगे, बहुत जल्द ही करने वाले हैं। So stay motivated my dears, and thank you very much for enjoying the video, for being live here with me. Okay, hit likes and share the channel as much as you can, and subscribe the channel. Okay, so thank you very much. Bye, have a good night.